And I am Athya Singh. Welcome you to Samvad on behalf of Nurture International School. We often hear that success is not just about personal achievements but also about life lessons, challenges, and inspirations that shape a person's journey. Today, we are privileged to have with us Dr. Preetham Kumar and Mohit, a name that shines in the field of aerospace research and engineering. To begin with, sir, could you please tell us about your early journey? What inspired you to choose aerospace engineering as your career? Was there a mentor or a role model in your life who guided you towards this field? Yeah, thank you, Manan. Thank you. Yes. Check. Thank you, Manan. Thank you, Aradhya. Thank you, NIS family. As always, I'm happy to be part of NIS family, and today I'm thankful to NIS for inviting me for this podcast. So, as the name suggests, Samvat, so I would like to have this Samvat, not just one way, I would like to have it two way, okay? So, maybe I will ask some questions or something like that. So, yeah, so coming to the question, yes, so aerospace engineering, you might be thinking that I might have decided it during my school days or college days or so. So it is not. It is completely accidental. Uh, I always wanted to be engineer, not even mechanical engineer. I always wanted to be agricultural engineer. I wanted to do that because I come from a humble farmer's family. So all my relatives, everybody in the family and the neighbors, everybody is farmer. So everybody wanted, okay, that yes, there should be something which will help the farmers also. So I always wanted to be a engineer, but in agricultural engineering. But that didn't materialize. Everybody wanted me to learn biology for doing MBBS. That also didn't materialize. So my journey to mechanical engineer was my choice, and then coming to aerospace engineering, as I said, was completely accidental. Uh, there were certain incidences or situations that made me to choose this field, and I liked it, and then I started exploring. And yes, at every stage, okay, when you are a student, whether it is a primary school, whether it is a high school, whether it is college, degree college, PhD, postdoc, at any place, not just education, even in the personal life also, you will have a teacher or a mentor who will guide you, who will direct you to the right things. At many times it happens, okay, when at a particular age, your mentor or your teacher will try to guide you, and many times it happens that okay, the things are the one which we don't like. Okay, some teacher will say, okay, you don't do this, but you should do this, and these are the exactly the opposite things that we do. Okay, so I had mentor during my primary school, that is class 1 to 4. Then during high school, during my engineering days, and of course in my masters and PhD. So the life without mentor, or it can is incomplete, I will say. Okay, so you need not to have mentor or in the form of always a teacher. It can be any person. It can be your friend. It can be your father. It can be your mother. It can be your brother. It can be your sister. But you need to identify that yes, he is my mentor, and I'm following him or her to a right path.
So during my school, primary school, I must say, today what I am here is because of three persons. Of course, my parents and a teacher in primary school, Srimati Rajmati Patil. We used to call her Bai. Bai means like, you know, Rani Lakshmi Bai. Yes. So in Maharashtra, I come from Maharashtra, a small town in Maharashtra, Kolhapur, at the foot of Sahyadri range. Okay. So it is just at the border of Maharashtra and Karnataka, near Goa. You may be knowing the place Goa. Okay. So it is not Konkan area, but it is just foothill of the Kolhapur. So I come from that place in a small village. So I was mentored by her. To be honest, I did not like to go school. मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था. तो I have very funny and interesting stories. Maybe I will talk during this. Okay. So she was the one. Okay. So she, in true sense, she nurtured me, and she instilled the interest about learning and other things. So yes, the life is not at every stage you will have a mentor. You need to just identify him or her. So, every successful professional has once been a student, and we are always curious to know about that phase of life. We would love to know, what kind of a student were you in school? Were you more into academics, sports, or cultural activities? Okay. So एक चीज़ तो मैंने बता दी कि भाई मुझे बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. So क्या लगता है आपको मैं कैसा स्टूडेंट रहा होगा? पढ़ाकू या लड़ाकू? हाँ, कोई बता दे कैसा रहा हो, गेस करिए. पढ़ाकू तो मैं बिल्कुल नहीं था, लड़ाकू था. सो मैं बिल्कुल बताऊंगा तो मतलब मुझसे कोई पंगा नहीं लेता था. आई वॉज इल मैनर्ड बच्चा, बोलते हैं ना, बिगड़ा हुआ बच्चा, उस तरह से का बच्चा था मैं. बिल्कुल स्कूल जाना पसंद नहीं था मुझे. कोई भी किसी से भी झगड़ा बोल लेता, मारपीट करना, सब यही चीज़ें मैं करता था. ठीक है. तो जब जैसे मैंने बताया कि जो पाटिल बाई थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को समझा कि भाई बच्चा तो अच्छा है, कर सकता है, तो ठीक है, थोड़ा उसका ध्यान रखे तो कर लेगा. तो उनकी वजह से जो है मुझे स्कूल जाना अच्छा लगा. अदरवाइज आई वॉज नॉट मीन फॉर स्टडी. ये था. एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो खेल कूद तो बहुत पसंद था. तो बचपन से जो है खेलना, बाकी चीज़ें, जैसे आज के ज़माने आप जैसे आप तो वीडियो गेम्स और बहुत सारा चीज़ें आपके पास अवेलेबल है. ये गांव था. दूसरी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका क्रिकेट हो या फिर कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट वाला गेम था, ऐसे वाले गेम तो बहुत कम थे. जो भी गेम थे फिज़िकल वाले गेम थे, तो वो खेलने हमें पसंद था. जैसे दौड़ धूप करना, मतलब ये चीज़ें, कबड्डी, खो खो, ठीक है, स्विमिंग. तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को बस अफोर्डेबल यही होती थी, तो हम लोग यही खेलते थे. क्रिकेट भी जो खेलते थे तो मान के चलिए कि कंट्रीब्यूशन लेकर, ठीक है, आप अपना अपना मतलब कोई बस किसी तरह से आप जो है बैट और बॉल का बस जुगाड़ करिए. आप जुगाड़ समझते हैं ना? तो बस ये दो चीज़ें करने थी. बाकी विकेट, स्टंप वगैरह कुछ नहीं था. भाई किसी के खेत में गए, गन्ना उखाड़ के लाए, स्टंप बना दिए, तो यही सब होता था. बस किसी तरह आप जो है बैट और बॉल, बाकी दोस्त तो भाई ऐसे ही बुलाने से आ जाते थे. तो ये चीज़ें होती थी. पढ़ना जो है सीरियसली, इट हैपेंड
because of again incident, I become serious about my studies when I was in class 8. So जैसे मैंने कहा कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो फार्मिंग का रहा है, तो जो भी घर में आता था, जो भी हम लोग जिसमें हमारी परवरिश होती थी, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द फार्मिंग। एंड ऑफकोर्स मेरे पिताजी भी जो थे हाई स्कूल में टीचर थे। सो बट हिज स्कूल वॉज डिफरेंट एंड माई स्कूल वॉज डिफरेंट अप टू क्लास 4। देन हाई स्कूल, that is from class 5th, I went to that school where my father was teacher. तो 90, I think it was 89, जैसे जो भयंकर बाढ़ आई, so इतना भारी नुकसान हुआ कि मतलब किसी के पास कुछ बचा नहीं। तो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो मेरे दादाजी, मेरे भाई, चाचा जी, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, ये जो ऐसा ही रहा तो फिर आप खाएंगे क्या। तो ये एक बार नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद फिर से यही चीज़ हुई। तो ये चीज़ थी जिसके कारण लगा कि नहीं, हमें इसके अलावा हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो वही चीज़ था उसी वक्त था कि आई थॉट दैट ओके, मुझे कुछ करना है तो एग्रीकल्चर में करना चाहिए, ताकि जो मेरे साथ गांव वाले जो है या इनका भी इसका जो है फ़ायदा हो। तो वो चीज़ करना था मुझे, ठीक है। तो यस, तो साथ ही साथ जो है खेल कूद वगैरह करते ही थे, लेकिन ऐसा तो उस वक्त सीरियस स्पोर्ट्स नहीं थे। बट अगेन स्कूल वाज द वन हु नर्चर्ड अगेन आवर स्पोर्ट्स। वी यूज्ड टू हैव एनुअल स्पोर्ट्स वीक। तो उसमें हम लोगों के डिफरेंट क्लासेस जो है उनके सारे तरीके के गेम्स होते थे। इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसे दिसंबर के महीने में हमारा जो हाई स्कूल था उसमें होता था क्लास 5 से लेकर 10 तक ही होता था। तो 5, 6, 7 इनका एक ग्रुप होता था एंड 7, 8, 9, 10 इनका एक ग्रुप होता था। तो आपस में जो है आप सारे गेम्स खेलते थे उसमें। तो उसमें कबड्डी, खो खो, उसके बाद क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये चीज़ें होती थी। उसके बाद एथलेटिक्स के सारे गेम्स, जैसे दौड़ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ओके, ये सारी चीज़ें होती थी। और दूसरी एक चीज़ थी कि आपको ये छत्रपति शाहूजी यूनिवर्सिटी तो आपको पता है, विश्वविद्यालय, तो आप जानते ही होंगे जो शाहूजी महाराज है तो वो कोल्हापुर के राजा है। तो मैं उसी प्लेस से आया हूँ। तो वो जो है ही इज़ वेरी क्या कहते हैं कि एक दानवीर राजा थे। मतलब अपनी प्रजा के लिए जो है ना बहुत उन्होंने कार्य किया है। तो वो जो स्कूल था वो उन्हीं की वजह से वो स्कूल था। और वो स्कूल ऐसा था कि मतलब अगल बगल के मतलब 5-6 गांव में कोई स्कूल नहीं था, बस वही एक स्कूल था। तो 5-6 गांव के बच्चे जो है रोज़ 3-4 किलोमीटर पैदल चल के सब लोग वहीं पे आते थे। तो वहीं पे जो है उन्होंने दे हैड दिस ऑलमोस्ट फॉर 6 years they trained the students in gymnastics. So I had I got a chance to get trained during that 6 years and that's why I'm a sports enthusiast. So उसके कारण जो है मुझे जिम्नास्टिक्स एज वेल एज एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आया। तो वो चीज़ रही। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी जो है, प्रिंसिपल मैम भी बैठी है, डायरेक्टर मैम भी बैठी है, तो आप भी बोल सकते हैं कि भाई यू शुड हैव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अ वीक वेयर यू कैन हैव अ स्पोर्ट्स वीक। ओके, सो आप लोग आपस में भिड़ जाओ मतलब स्पोर्ट्स में भिड़ जाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यस, दिस विल हेल्प यू एंड यू विल हैव द बॉन्डिंग। तो आप आपस में नहीं, मतलब बस क्लास में नहीं, मतलब दूसरे क्लास के बच्चों के साथ भी जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आप में इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो दिस इज़ हाउ। एंड देन बाकी जो है चीज़ें जो है, मैंने कहा कि जैसे वो भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण जो है मेरी लाइफ बदल गई। तो मैं आई बिकम वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। आई थिंक इट वॉज इन क्लास 8। देन मुझे किसी ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आपको ये करना है वो करना है। देन आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। बाकी सारी चीज़ें होती हैं।
थैंक यू मनन भाई। मैं तो बताऊंगा कि जो स्कूल की लाइफ है दैट इज़ द बेस्ट लाइफ यू विल लिव इन योर एंटायर लाइफ। इससे अच्छी ज़िंदगी, इससे अच्छी मेमोरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अभी तो लगेगा यार ये क्या रोज़ आना है, रोज़ भेज देते पिताजी, मम्मी भेज देती है, भैया बोलता है, दीदी बोलती है ये करो वो करो, टीचर बोलते हैं ये बोलते हैं। लेकिन ये जो आपके स्कूल के जो 10 साल है यहाँ पे या 12 साल है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल रिग्रेट लिविंग द स्कूल नॉट नाउ। अभी तो बोलेगे नहीं निकलना यहाँ से, जल्दी से निकलना है, लेकिन 5 साल के बाद यू विल फील नॉस्टैल्जिक। आपको स्कूल की याद आएगी और बोलेंगे, तुम लोगों को बोलेंगे अरे वो दोस्त कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। एंड यू वुड ऑलवेज लाइक टू कम टू स्कूल। तो ये जो है स्कूल की लाइफ जो है सबसे बहुत ही रोमांचक रहती है, फुल ऑफ मेमोरीज रहती है। सो आई ऑल्सो हैव मेनी इंडेलेबल मेमोरीज रिगार्डिंग द स्कूल। तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो क्या आपको याद है आपका स्कूल का पहला दिन कैसा था? यस, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे टू स्कूल, टू नर्चर और क्लास 1? यस, मुझे पक्का मालूम है कि आपके मम्मी पापा ने आपको एकदम बढ़िया से एकदम नहला कर अच्छे से यूनिफॉर्म पहनाया, आपका फेवरेट टिफ़िन बनाया होगा, आपको चॉकलेट भी दिया होगा। यस, एंड दे माइट हैव अकम्पनाइड टू द स्कूल। यहाँ तक आए होंगे ज़रूर। यस, बहुत सारे लोगों का यही एक्सपीरियंस है, करेक्ट? भाई मेरा एकदम उल्टा था। मेरा फर्स्ट डे एक दिन नहीं था, एक दिन से ज़्यादा था। अब कैसे? भाई मेरे पिताजी आते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉलर पकड़ के ऐसे स्कूल लेकर आते थे, झोला होता था। वी डोंट हैव द प्रॉपर स्कूल बैग ऑल्सो, वी यूज्ड टू हैव अ झोला जो कैरी बैग जैसा होता है, किसी गनी बैग का और इसी तरह का होता था, उसमें लेकर हम आते थे। सो ही विल टेक मी टू द स्कूल, देन आई विल गो इनसाइड द क्लासरूम और उसके बाद पिताजी चले जाते थे। तो जैसे पता चलता कि पिताजी दूर चले गए हैं तो मैं स्कूल की जो खिड़की होती थी वहाँ पे मैं अपना बैग रख देता था और उसकी जो खिड़कियाँ थी थोड़ी लूज थी, वहाँ से जंप मार के रोज चला जाता था। तो दिस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक। तो पिताजी घर आने के बाद पूछते थे क्या हुआ, तो मेरी मम्मी बोलती थी नहीं आपके जाने के बाद फिर वापस आ गया था तुरंत। तो ये पूरा हफ्ता जो है ऐसे ही चलता रहा। सो देन वन डे व्हाट इट डिड कि जैसे उन्होंने नाटक किया कि भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जो है जैसे मैं खिड़की से कूदा वो वहीं पे खड़े थे और उनके पास, और हमारे यहाँ जो स्कूल शुरू होता है इट स्टार्ट्स इन जून, जो बरसात का मौसम होता है। बरसात हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बरसात जो है इट स्टार्ट्स रेनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इटसेल्फ। तो उनके पास छाता था, और छाता कैसा था, पुराने ज़माने का छाता याद है आपको? उसमें जे होता है, डंडा होता है, जे होता है ऐसे, और मजबूत होता था पहले। ऐसा नहीं कि भाई आज का जो छाता होता है कि हवा आती तो एकदम टूट जाता है, वैसा वाला बिल्कुल नहीं था, एकदम मजबूत था। जैसे देखा मैं उतरा हूँ, उन्होंने छाते से जो है जो मेरा लेग पकड़ा ऐसा, मतलब जो पैर में ऐसा फंसाया कि कोई चांस नहीं था कि मैं निकल जाऊँ वहाँ से। उन्होंने पूरा जो है ऐसे खींचते हुए, मैं एक पैर पे लंगड़ी लगाते हुए वो फिर से मुझे स्कूल के अंदर डाल दिया। तो दैट इज़ द मेमोरेबल थिंग। ओके एवरीबडी, मेरे दोस्त जो है आज भी जो है उस चीज़ को याद करके हम लोग बहुत मज़े लेते हैं कि अरे भाई तुम्हारा पहला स्कूल कितना दिन का था, और वो दिन तो हम लोगों को याद है बोलते हैं। और आज भी लोगों बोलते हैं, मेरे पिताजी के साथ जब भी आते हैं, जब होते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे अंकल जी आपने इसको कैसा डंडा मारा है, ये तब से जो पढ़ रहा है अभी तक पढ़ रहा है, IIT जाकर भी पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी, इसलिए आपने ऐसा कैसा डंडा मार दिया इसको। सो दिस वॉज वन ऑफ द फनी थिंग। अदर और एक चीज़ है कि
मुझे जो है क्लास फर्स्ट की बात है, जब मैं गया तो आई डिडंट वांट टू स्टडी, मैंने कहा कि मुझे कुछ आता नहीं। देन जो मेरे टीचर थी पाटिल भाई, उन्होंने बताया नहीं ऐसे लिखो, ये करो। शी डिड नॉट लूज द पेशेंस। उन्होंने मैं बहुत चीज़ें, मैंने बहुत उटपटांग चीज़ें की, बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपना पेशेंस नहीं खोया। ठीक है, हर चीज़ उन्होंने जो है संभाली, जो है किसी भी तरीके से। हाँ ठीक है, तुम जो करना चाहो ठीक है करो, ये करो। तो मुझे 5 और 7, मतलब देवनागरी में 5 और 7, हिंदी में आप जैसे लिखते हैं ना 5 और 7, वो मुझे लिखना नहीं आता था। तो मेरा जो भी टेबल होता था, जो भी होता था, उसमें दोनों डिजिट्स जहाँ जहाँ आते थे वो छोड़ के सब लिख होता था। तो फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बस यही 2 चीज़ें जो है ट्रेस करने के लिए बोलती थी, बार बार करो, फिर भी नहीं आती थी। लेकिन मेरा जो दोस्त था उसने सिखाया कि 7 और 5 कैसे ड्रॉ करना। सो एक चीज़ है कि आपके दोस्त भी जो है कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं जो आपके टीचर नहीं सिखाते हैं। और टीचर ये होते हैं कि अगर उनको पता चले कि आप में कौन सा स्किल है, आप में कौन से खूबियाँ हैं, तो उनको पता है कि उसको कैसे नर्चर करें। तो आपके टीचर अगर बताते कि नहीं ये चीज़ बेटा, ये चीज़ करो, तुम अच्छा करते हो, तो वहाँ समझ लो कि मतलब आप में जो गुण है उन्होंने पहचान लिए हैं। तो ये चीज़ें थी, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वंदन ने तो मुझे एकदम 40 साल पहले वापस भेज दिया। मुझे लगता है आप 2-4 दिन जो है मैं अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करके बताऊँ कि भाई हम लोग ये करते थे, और मैं आज एक मेरे बेटे के स्कूल में गया था तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है अगले 4-5 दिन जो है मैं अपने दोस्तों के साथ यही बातें करूँगा। सो दिस इज़ द बेस्ट लाइफ, ओके, दैट यू विल लिव, एंड यू विल रिग्रेट मे बी आफ्टर 5 years और सो, वेर नहीं यही अच्छा था, ये सब जॉब, हायर स्टडीज़, ये वो कोई मायने नहीं रखता, ये सब बेस्ट लाइफ थी, चलो चलते फिर से यही लाइफ जीते हैं। तो और एक चीज़ हम जो आज की डेट में भी करते हैं जब हम लोग दोस्त मिलते हैं, सो आपको पता है फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया, नहीं आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो जैसे आपके आज के डेट में कार्टून्स आते हैं, आपके जैसे आता है ना कार्टून नेटवर्क आता है, डोरेमोन आता है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त जो है उस वक्त बस दूरदर्शन ही था, और उसमें फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया की कुछ कार्टून वाली छोटे से 4 मिनट 5 मिनट की छोटे छोटे ऐसे ही कार्टून वाली जो है मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह आते थे, जिसमें आप जो है कुछ मैसेज देना चाहते हो। तो उसमें 2 चीज़ें होती थी, एक था एकता का वृक्ष, ट्री ऑफ यूनिटी, आप देख लीजिए गूगल पे सर्च मारिए, बहुत पॉपुलर है, आप भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। और दूसरा है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा एक गाना था, सूरज एक चंदा एक तारे अनेक करके, सो वो एक है, आप देख लीजिए। ये 2 जो है दूरदर्शन पे हमेशा आते थे और हम लोगों को बहुत पसंद था। जो एकता का वृक्ष जो है आप बिल्कुल देखिए, और उसमें जो लोग उटपटांग खगरका कर रहे हैं ना, हम लोग आज लोग वैसे ही मिलकर हम लोग नाचते हैं, जब कोई नहीं होता है तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो है ना, ये जो स्कूल की लाइफ है, आप मान लीजिएगा, मतलब दिस इज़ द रियल लाइफ, ओके, यू विल एंजॉय। थैंक यू। So school life always leaves behind moments that stay with us forever. Every setback is a setup for a comeback. We all know success does not come without its fair share of challenges. Can you share some of the struggles you have encountered along the way and how they have contributed to shaping your life and career? Yes. तो या ऐसा है कि हर चीज़ जो है जो लोगों को दिखती है वो होती नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कहानियाँ होती है। यस, सो मैंने जैसे बताया कि आई बिकम सीरियस अबाउट माई स्टडीज़ इन क्लास 8, यस, देन आई डिड वेरी वेल इन माई engineering also I did very well, so I got 4th rank in the university, so I lost my gold medal just by 4 marks. तो पहले वाले को जो जितने मार्क्स थे उससे बस 4 मार्क्स मेरे कम थे। सो उसके लिए भी रीजंस थे, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल था, फॉर गुड रीज़न एज वेल एज फॉर द बैड रीज़न।
तो इतना होने के बाद भी जो है इट वाज 1998, तो आपके पेरेंट्स, आपके पापा लोगों को भी पता होगा ये चीज़। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इट वाज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में जस्ट उसके पहले जो है कुवैत और इसमें जो है वॉर भी हुआ था, उसके रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिक रिसेशन आया था, जॉब्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इतना होने के बाद भी मैं यूनिवर्सिटी रैंकर भी था, तो इसके बाद भी जो है मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो क्या करें। तो एट द सेम टाइम भाई मैंने सोचा कि भाई आईआईटी में जाकर जो है अच्छी जगह पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। सो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले जो है 15 दिन पहले तक जो मैं सारे नॉर्थ में मैं पहले कभी नहीं आया था, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं गया था। तो वही टाइम था, उस वक्त मैं बहुत सारी जगह पे गया। आईआईटी बॉम्बे गया फॉर माय मास्टर्स इंटरव्यू, देन आई वेंट टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ भी रिटर्न टेस्ट दे के आया, इंटरव्यू दे के आया। आईआईटी दिल्ली गया, आईआईटी खड़गपुर गया, ओके, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन आया, कहीं पे भी मुझे एडमिशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो वापस घर आया, तो क्या करें, ठीक है। तो वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री था, तो वहाँ पे मैंने आप समझते हैं ना डेली वेज वर्कर, मतलब जिस दिन आप काम करेंगे आपको उस दिन का पैसा मिलेगा। तो मुझे उस तरह का जॉब मिला कि भाई आप ठीक है, आप इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। एंड छोटी सी इंडस्ट्री थी, तो मैंने सोचा ठीक है भाई कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। घर में बैठ के तो भाई लग रहा था कि भाई इतना होने के बाद भी जॉब नहीं, घर में बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई वर्क देयर फॉर 3 months, और उसी समय जो है आईआईटी कानपुर का जो है एडवर्टाइजमेंट निकला। सो आज की डेट की जैसे भाई इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है कि कहाँ पे एडमिशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं मिलती थी। तो उस ज़माने में जो है हम लोगों को न्यूज़पेपर से ही पता चलता था कि न्यूज़पेपर जाके पढ़ो, देखो, ठीक है। और वो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी लोकल न्यूज़पेपर में नहीं आते, तो जो नेशनल लेवल के होते थे उसी में एक आता था टाइम्स ऑफ इंडिया होता था, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो उसमें हम रोज़ जाके देखते थे, लाइब्रेरी देखो कोई जहाँ पे सारे ये न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ पे जाकर रोज़ देखते थे कि भाई कोई एडवर्टाइजमेंट निकला है कि क्या निकला है कहाँ। तो फिर जो है वहाँ से लेकर इंफॉर्मेशन लेके फिर कर देते। सो आई गॉट चांस टू अप्लाई टू आईआईटी कानपुर। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट एडमिशन टू आईआईटी कानपुर, एंड आफ्टर अ मंथ आई गॉट अ लेटर कि भाई यू हैव गॉट एडमिशन इन डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, you have been offered a monthly stipend of 2,500 rupees, and you have to accept this offer within 15 days. तो I didn't believe, कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब बस just on the basis of the entrance exam result I got the admission. So at that time only 5 students got the admission into that. So it changed my life. I came to IIT Kanpur for the first time. It was 25th December 1998. I still remember the date. It was morning, I think around 9 AM when I reached IIT Kanpur. So तब से जो है मैं अभी यहीं पे हूँ। तो ज़िंदगी में जो है कोई भी चीज़ें जो है आपको आसानी से नहीं मिलती, और अगर आसानी से मिलती है then you will not realize the value of what you got, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको वो हासिल करने में परेशानी हो रही है, बहुत मेहनत कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो चीज़ जो है आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, आपको बहुत उसका आउटपुट जो है, रिटर्न जो है आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, आपको जो करना है आप बस लगे रहिए, ठीक है। आप जो चाहते हैं मन से करते रहिए। सो येस, सो देयर वर मेनी डिफ़िकल्टीज इन माई लाइफ, ओके। सो दिस वॉज द एरिया, आई थिंक जो ये चीज़ें हुई तो आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन कि भाई इतना होने के बाद भी मुझे इतनी जगह पे मैं इंटरव्यू देने गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी जो है हर जगह से जो है मुझे रिजेक्शन ही आ रहा।
सो होता है, बट यू शुड नॉट गिव अप। बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है। आप छोड़ गए तो मैं समझ लीजिएगा आप भगोड़ा कहलाओगे। यस, भगोड़ा जानते हैं ना। सो ज़िंदगी में कभी भगोड़ा नहीं बनना है। जो है हर चीज़ को जो है हिम्मत से सामना करें। नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में आपको कभी ये चीज़ खलेगी नहीं, अरे नहीं भाई मुझे कोशिश करनी चाहिए थी, बिना कोशिश किए आप अगर आप इस चीज़ के लिए रीज़न दे रहे, अरे नहीं वो ऐसा था वैसा था इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं, देन यू डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। आप ज़िंदगी में कोशिश करो, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो भी मेहनत लेते हैं, भले ही उसका फल उस समय ना मिले, लेकिन बाद में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। Thank you for sharing your experiences, sir. Sir, after completing your doctorate studies, you pursued postdoctoral study research at the University of Paris, France. Could you please share some key insights and experiences from that phase of your academic journey? थैंक यू। सो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद गोइंग टू अदर कंट्री, दैट टू इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री विच मैन्युफैक्चर्स द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सो आप एयरबस जानते हैं? एयरबस एक है बोइंग, दूसरी एयरबस, ये दो ही कंपनियां हैं ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिसमें आप जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें आप कभी आपने ट्रैवल किया हो तो ये दो कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। सो आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ द वन ऑफ द लीडिंग रिसर्चर और द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जहाँ बस उन्हीं के कारण जो है एयरबस कंपनी ने वहाँ पे कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर खोला था। सो ही वॉज लाइक द टॉप नॉच साइंटिस्ट इन द फ्रांस। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, जो टॉप नॉच साइंटिस्ट है, उस फील्ड के जो एक्सपोनेंट है, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न। उसी तरह वो जो मेरे मेंटोर थे प्रोफेसर पियर लादवेस, तो वो भी जो है उनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड उनको दिया। तो आई एम वेरी प्रिविलेज टू वर्क विथ हिम। सो वहाँ जाने के बाद पता चला कि हम लोग जो यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं ना, सो इट इज़ नॉट लेस व्हाट द अदर कंट्रीज और अदर वर्ल्ड इज डूइंग। वी आर एट पार और इवन इन सम केसेस मच मोर अहेड ऑफ देम। हम लोग जो है इंडिया में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको लगता है कि नहीं ये तो अरे ये आसान चीज़ें, बाकी चीज़ें दुनिया के में बहुत कर रहे लोग। नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं कुछ चीज़ों में जो है हम लोग बाकी वर्ल्ड से भी जो है बहुत आगे हैं। तो हमने जो मतलब जिस तरह से मैंने काम किया था पीएचडी में या मास्टर्स में, सो व्हेन आई प्रेजेंटेड माय वर्क देयर, सो पीपल वेर एस्टोनिश्ड। भाई जहाँ के जिस प्रोफेसर ने बस कहीं पे एक पेपर में उन्होंने बोला था कि इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सो इनफैक्ट वी डिड दैट थिंग, हम लोगों ने वो करके दिखाया कि हमने किया है। व्हेन वी टोल्ड हिम दैट दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, सो दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए हमारे साथ, एक साल तक आप काम कर सकते हो। सो आफ्टर गोइंग देयर आई वर्क देयर एंड यू बिलीव मी दैट ओके इंडियंस आर मच मोर एफिशिएंट। हम लोग बहुत लोग एफिशिएंट हैं, बट हम लोगों में एक कमी भी है। हम लोग जो है ना, जब तक हमारे सर पे नहीं आता है कोई भी काम, तब तक हम लोग काम करते नहीं। तो हम लोग जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं, डिले करने की कोशिश करते हैं। जब आएगा हम लास्ट मोमेंट में कर देंगे। जैसे आप लोग होमवर्क में भी करते होंगे, अरे ठीक है परसों बोले ना मैम ने, ठीक है हम एक दिन पहले कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देखी कि मतलब वी आर वेरी एफिशिएंट, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारा पेशेंस है और वर्क जो हम लोग करते हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी है। आप फ्रांस में देखोगे तो वहाँ लोग आते थे, अपने समय से आते थे और समय से चले जाते थे। एक आधा घंटा भी वो लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं, अपना अपना काम करके चले जाते हैं।
जिस समय मतलब लंच ब्रेक होना है उसी वक्त सब चीज़ें बंद हो जाएगी, आपको कोई नहीं दिखेगा, तो ये होता था। और जिस दिन मतलब जो वर्किंग डे उसी दिन ही लोग आएंगे काम करने करेंगे, बाकी दिन मतलब कोई मतलब वहाँ दिखेगा अरे यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं, ऐसे चीज़ें होती थी। तो दूसरे जो प्रोफेसर थे उनको बोला जाता था कि ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत काम करवाता है, बहुत अकेला काम करता है, जिसको भी जिसके साथ वो काम करता है उसको भी बहुत परेशान करता है। तो ऐसे दूसरे प्रोफेसर जो थे उनके साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ख़त्म किया तो वो बाकी लोग बोल रहे थे यार कि जो फ्रांस का जो प्रोफेसर था वही परेशान हो गया था कि भाई यही मुझसे ज़्यादा पहले यही आ जाता है, वो मेरे बाद यही चला जाता है, इतना काम कर रहा है, इसके कारण मुझे रहना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि इंडियंस have very good reputation outside the world. Okay, so if you go in future outside the world, so please remember you are not going as an individual, but you are representing your nation. So you should leave a very good impression about yourself as well as your country. So it is your responsibility. ठीक है? Thank you for your valuable insights, sir. Sir, after you return to IIT Kanpur, could you describe a recent project that you have led or been actively involved in and its broader impact or significance in the field of aerospace engineering? So there were some interesting projects that I have worked and still working on it. तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एज यू नो कि जो भी मटेरियल यूज़ होता है इट मस्ट बी वेरी लाइट मटेरियल। सो एक तो मटेरियल आपको पता होगा कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं एरोस्पेस से एरोप्लेन बनाने में, कार्बन फाइबर। और कोई यूज़ करते हैं दूसरा कोई मटेरियल? और होता है पहले के जो एरोप्लेन्स होते थे एल्यूमिनियम अलॉय से बनते थे। आज की डेट में जो है जैसे आपके दोस्त ने कहा कि कार्बन फाइबर, सो दिस इज़ बेसिकली एक न्यू मटेरियल है, पॉलीमर कंपोजिट्स। ओके, सो यू हैव कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर्स, एरामिड फाइबर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सो ये जो है सो दीज आर मच बेटर इन qualities as well as properties, performance as compared to the conventional material that is your aluminum alloy. But it has many problems. उसके साथ उसके और भी प्रॉब्लम है। जैसे ये जो मटेरियल है जैसे कार्बन है ये कार्सिनोजेनिक है। सो कार्सिनोजेनिक मीन्स इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, सो सारा मटेरियल जो होता है वो सारा का सारा यूज़ नहीं होता है। सो देयर इज़ सम वेस्टेज, सो दिस सम ऑफ द मटेरियल इज़ वेस्टेड। तो वेस्ट हुआ तो क्या करेंगे, यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेगा, सो आप उसको डंप करोगे, गार्बेज में डाल दोगे। ठीक है, सो दिस मटेरियल बीइंग अ वेरी कार्सिनोजेनिक एंड इज़ हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। सो व्हाट पीपल डू इज़ यस, वेस्ट मटेरियल के साथ आप कैसे उसको डिस्पोज करते हैं, या तो आप उसको लैंडफिल करते हैं या फिर इंसर्नेशन करते हैं। यस, सो इन बोथ द केसेस it will leave its harmful effect on environment. So what we did was trying to recycle this material and use them in useful things. So that was one of the project that I did, so that we are concerned about our environment. That's one thing. और दूसरा है, so have you heard radars? क्या करते हैं रडार? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है सो आप एक वेव्स छोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको डिटेक्ट करते कि हाँ देयर इज सम ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्लाइंग। यस, सो रडार्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप छोड़ते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं वेव्स और फिर वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं आप उसको रिसीव करके आइडेंटिफाई करते कि हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे देयर इज़ सम ऑब्जेक्ट। सो ये जो है
there are two things. It's called war game. Okay, so war game means अगर आप इंडियंस है, ठीक है, और मान के चले कि मतलब किसी इनिमी का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आता है, तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू डिटेक्ट इट विद द रडार एंड शॉट इट डाउन, करेक्ट? अगर आप इंडियन है और आप किसी मिशन पे गए हैं आपका एरोप्लेन लेके, तो आप क्या चाहोगे? कि आपका एयरक्राफ्ट जो है किसी को डिटेक्ट ना हो, ठीक है? सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वॉर गेम. ओके, सो एक टेक्नोलॉजी होती है उसको बनाने के लिए और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है कि आप जो उसका तोड़ ढूंढ ले कि भाई ये कैसे काम ना करे. तो दोनों तरीके के जो काम है साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. तो कोई भी आप देखेंगे जहाँ भी काम होते हैं तो एक होता है उसको प्रमोट करने के लिए और दूसरा होता है कि भाई उसका प्रमोट कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को जो है हमें रोकने की भी इस तरह से चलता है. तो तो मेरा जो करंटली वर्क था, सो दैट इज़ वी वांट टू मेक अ मटेरियल which will absorb the electromagnetic waves so that your aircraft or any flying object is not detectable. So ये बहुत सारी चीज़ें उसमें काम हुई है, बहुत सारे लोग जो है इसको बना भी चुके हैं, लेकिन इसमें नयापन ये था that what we are trying to do कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास DRDO लैब्स है. DRDO लैब्स आपको पता है व्हाट इज़ DRDO? यस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो उनके बहुत सारे लैब्स हैं. तो लगभग आई थिंक 25 ईयर्स बैक दे डेवलप्ड अ पेंट. उन्होंने पेंट बनाया था. सो उन्होंने बताया कि भाई इसको पेंट को लगाएंगे तो आपका एयरक्राफ्ट जो है गायब हो जाएगा. गायब हो जाएगा मतलब रडार से गायब हो जाएगा, मतलब आपने रडार वेव्स छोड़े तो डिटेक्ट नहीं कर पाए. लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. पेंट है, आपने देखा होगा, घर में भी होगा, कहीं भी होगा, पेंट जो है कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है? निकल आता है, पील ऑफ होता है, ठीक है? तो वही चीज़ होती है एयरक्राफ्ट में भी. अगर आप ये वाला पेंट यूज़ कर रहे हैं तो 3-4 बार वो जो है जाएगा, अपना मिशन करेगा, वापस आएगा, 3-4 बार जाएगा, वापस मिशन आएगा. तो इसमें जो है जो पेंट जो है पील ऑफ होता है. सो अगर एक जगह पे भी कहीं से भी पील ऑफ हो जाएगा तो आपका व्हीकल जो है इज़ वल्नरेबल टू द डिटेक्शन बाय रडार. थोड़ी सी भी कहीं से भी पेंट निकल गया, वहाँ से रडार वहाँ पे पहुँच गया तो आपका व्हीकल डिटेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट वी वांटेड टू डू इज़ वी वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दैट मटेरियल इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ. मतलब जो अगर मुझे इसको जो है रडार अब्सॉर्बिंग जो है डिटेक्ट ना हो, ठीक है, तो मैं एक रीज़न है, एक चीज़ है कि भाई मैं उसको चारों ओर से पेंट को, ठीक है, लेकिन पेंट निकल आए तो क्या करेंगे? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ इसी के अंदर हम वो मटेरियल डालें ताकि ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा जो टेबल है, कुछ भी हो जाए रडार से डिटेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द वर्क दैट आई एम currently working on. There is other things as well apart from the inflatable structures. Hearing about these projects makes us even more curious towards the field of aerospace engineering. Sir, artificial intelligence has emerged as one of the most discussed topics in recent years. How do you personally incorporate AI in your work, and what, in your opinion, are its potential applications in the field of aerospace research and engineering? Okay, so what is AI? Artificial intelligence. So the word artificial itself tells us yes, it's not its own intelligence, but somebody is putting the intelligence into it. Okay, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज़ नॉट मच यूज्ड एट दिस स्टेज. इफ़ इट इज़ यूज्ड छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ तक आप जानते हैं, कौन से फील्ड में आप ज़्यादा ही देखते हैं इसको यूज़ किया जा रहा है? हाँ, रोबोटिक्स और IoT devices.
रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आपके वीडियोस सॉन्ग्स वगैरह जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। और जो भी ओपन रिसोर्सेस है, जहाँ पे बहुत सारा ओपन रिसोर्सेस अवेलेबल है। व्हाट इज मीन बाय ओपन रिसोर्सेस? It can be used by anyone. जो चीज़ें जो आपको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अवेलेबल है, ठीक है, जैसे इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आप यूज़ करके कुछ नई चीज़ बना रहे हो, ठीक है। उसी तरह एरोस्पेस जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ एसोटेरिक फील्ड। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू डू आर एसोटेरिक, मीन्स यू डू इट इन अ स्पेशल वे एंड मेनी ऑफ द थिंग्स यू डू इट ओनली वंस, ठीक है। आपने हर बार मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लॉन्च व्हीकल बनाया, आप जिसको रॉकेट बोलते हैं, वही रॉकेट जो है जो 10 साल पहले यूज़ किया वही रॉकेट वही टेक्नोलॉजी आज के डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस टेक्नोलॉजीज आर इम्प्रूविंग फास्ट। सो और जैसा कि आप जानते हैं, हम अगर रॉकेट बना रहे हैं तो हम उसको ओपन डोमेन में नहीं लेंगे, ओपन रिसोर्स नहीं बनाएंगे, मतलब सबके लिए अवेलेबल कर देंगे। हाँ भाई, हमने रॉकेट बनाया, ये इसका डिज़ाइन है, ये इसके फॉर्मूला है, आप कोई भी बना लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है आप किसी को साथ शेयर नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, इसको इस चीज़ को बोलते हैं क्लासीफाइड डेटा, तो आप अपने पास ही रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है एरोस्पेस फील्ड में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो है कुछ चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती है, वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि ब्लड के सैंपल्स लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें देखते हैं कि हाँ ये कौन सा एंटीबॉडी है या कौन सा फॉरेन ऑब्जेक्ट है वगैरह वगैरह सब देखते हैं। तो डिफरेंट आप उसके पिक्चर्स लेते हैं और फिर मान के चले कि किसी पेशेंट को उसी तरह का पिक्चर आया, तो आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से ये पिक्चर जो है और किसी पिक्चर के साथ मैच किया है क्या, हाँ ठीक है इस पिक्चर के साथ मैच किया, तो फिर उस पिक्चर को लेकर आप देखते हैं कि हाँ इस पेशेंट को हमने कौन सी दवाई दी थी, हमने कैसे इसको ट्रीट किया था। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ जो है तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ फील्ड ऐसा है जहाँ पे आप डेटा अवेलेबल नहीं है या फिर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों में जैसे है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देखा होगा कि अगर ये ग्लास है, ठीक है, तो ऊपर से तो मतलब एकदम प्लेन दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है ये किस चीज़ से बना है और इसके कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इसमें सिलिकॉन है, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। आपने बायोलॉजी में किया होगा, यस, तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा। तो उसी तरह हर चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो वो देखने के लिए एट सम टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर जो है उसको हम माइक्रोस्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का, तो मुझे ये वाली प्रॉपर्टी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि यंग्स मॉड्यूलस, यस, क्लास 11-12 के बच्चे आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम प्रॉपर्टी जो है हम निकाल सकते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर को देख के, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें जो है वी कैन डू इट विद द artificial intelligence, but not everything. If somebody says okay now you have to go and design a launch vehicle, it's not possible with AI, not at all possible. Thank you, sir. After witnessing rapid advancements in technology and innovation, how do you envision the field of aerospace engineering evolving over the next decade? So, आपने एक proverb सुना होगा, sky is the limit, yes, but sky is not the limit for aerospace engineers, okay. So as you know, इंडिया का रिसेंट फीट इन द एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब रिसेंटली इंडिया ने कौन सा अचीव किया है स्पेस टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट? सो वी हैव लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। देन डू यू नो आदित्य? यस, आदित्य। डू यू नो गगनयान? गगनयान
Yes, okay. So these are some of the developments and जैसे गगनयान जो है कि इस मेन और इस फॉर स्पेस स्टेशन, तो हम लोग जो है इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स और मे बी फ्रॉम अदर कंट्रीज ओके हु आर विलिंग टू जॉइन अस फॉर गुड ओके, तो ऐसे लोगों को जो है ट्रेन करने के लिए जो है गगनयान जो है ये बन रहा है विद द थिंग दैट ओके विल गो एंड डू मोर स्पेस एक्सप्लोरेशंस ओके. मून तो बस एक झांकी है ओके. सो आप बोलते हैं ना एक ये तो अभी झांकी है, बाकी और क्या जो चीज़ बोलते हैं ना, एक तो अभी झांकी है और हाँ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. तो उसी तरह से है कि मून एक्सप्लोरेशन, उसके बाद मार्स एक्सप्लोरेशन, एंड apart from that people are going beyond these planets okay. So going to the other galaxies okay. तो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ फ्रॉम दी स्पेस ओके. और आप सोच रहे हो कि भाई मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मून पे सब लोग जाने के होड़ में क्यों है, कैन यू गेस क्या चीज़ हो सकती है बताइए. Many countries are trying. You might have heard they have made colony on the moon. Some of the European countries and USA, they have said that okay they have the colonies on the moon. Are you aware of this? वो क्यों कर रहे हैं? Have you heard during your class 9th history? Yes, there were colonized countries. किस लिए कॉलोनी की थी? रिसोर्सेस ओके. सो द रिसोर्सेस, तो हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है अभी? रिसोर्सेस. वी आर वेरी फास्ट डिप्लीटिंग रिसोर्सेस. पानी तो एक है ही यस, पानी देर आर अदर प्लैनेट्स वेयर यू हैव द वाटर okay, but they are so far you cannot bring it here okay. So you have to find the ways how you can conserve the water okay. You might have also heard that there are some countries that they will means the water will completely finish in another 20-30 years. They will not be left with any single drop of water. ठीक, और कोई चीज़ है दूसरा? Minerals, yes. Then petroleum, yes. There are many other resources, elements, materials which are very useful to us, and everybody wants to bring it to the earth. Okay. तो उसमें one of them is helium, helium-3, and helium-3 is used for cooling the systems used in क्वांटम कंप्यूटिंग ओके. तो लोग जो है कोशिश करेंगे भाई हम वहाँ से हीलियम जो है भर भर के अर्थ पे लाएंगे और यहाँ पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे ठीक है. सो देर आर मल्टीपल रीजंस. वन रीज़न इज विच इज़ लेस टॉक्ड इज दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैप्चर द रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. दिस इज फर्स्ट थिंग. एंड अदर थिंग इज द कंट्री वॉन्ट्स टू शो द डोमिनेंस and the technological development that they have achieved okay. So जैसे हमने साउथ पोल पे लैंड किया, then everybody recognize yes इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर भी है, एंड दे कैन डू एनीथिंग ठीक है. सो उसके साथ जो है इंडिया का नाम जो है इन द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन द कंट्रीज विच आर टॉप 5 countries which are known for the space explorations और space technology, उसमें हम लोग उन टॉप 5 में हम लोगों की गिनती हो रही है. सो ये चीज़ें हैं जिसके कारण ये हो रही है. इसके अलावा जो है दिस इज़ अबाउट द स्पेस. द अदर थिंग इज कमिंग बैक टू द एरोनॉटिकल. एरोनॉटिकल मीन्स द व्हीकल्स दैट फ्लाई इन द एटमॉस्फेयर, उसके बारे में. तो बेसिकली इट इज़ योर एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एंड अदर थिंग्स. So there is a projected thing that many or major
cities in India will now have airports, and all of them will be connected with the major or big airports within India. So currently India mein I think we have around 170 airstrips, airports, okay, and in coming years the government has planned to double it, so we will have more than 350 plus or close to 400, okay. तो अगर सब जगह पे एयर स्ट्रिप बन रही है, सब जगह पे एरोप्लेन बन रहे हैं, मतलब उसी प्रपोर्शन में एरोप्लेन्स भी चाहिए, उसी प्रपोर्शन में पायलट्स चाहिए, उसी प्रपोर्शन में ग्राउंड क्रू चाहिए, मतलब जो एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं वो लोग भी चाहिए, ठीक है. सो इन द कमिंग ईयर्स, आफ्टर 4-5 years और सो, एरोस्पेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू टेक अ बूम, ठीक है. तो एकदम इतना उछाल आने वाला कि देयर विल बी मेनी जॉब्स अवेलेबल, मेनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, आपको बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है. आप यू कैन डू लाइक द मैनेजमेंट, मेनी ऑफ द थिंग्स यू नीड टू मैनेज, ओके. सो इट इज़ नहीं, ऐसा नहीं कि बस आपको जो इंजीनियर बन के ही चीज़ें करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना इंजीनियर बन के भी आप कर सकते हैं. जैसे आप मैनेजमेंट का कोर्स भी करेंगे, उसमें एविएशन मैनेजमेंट, तो उसमें भी जो है आपको प्रॉस्पेक्ट्स है. तो इन कमिंग ईयर्स all the countries are looking at India as a emerging country which will have or which will become one of the big in the aerospace, especially this aeronautical as well as the aerospace industry. So I think you people should think about it, you should plan about it कि आप लोग इसमें चीज़ क्या कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी आपको साइंटिस्ट ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है. Your insights were really valuable, sir. Yeah, thank you, ma'am. So moving on to the next questions. So why did you choose academics as your profession when you had a chance to work with top level aerospace industry? Yeah, thank you. So again, this is sorry. So आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि मैंने प्रोफेसर बनना क्यों पसंद किया जबकि मैं इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता था, जबकि मैं ऐसे कंट्री में था जहाँ पे मुझे ऑफर भी मिल रहे थे कि भाई आप यहीं पे रहिए और एयरबस में काम करिए, पर वो छोड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया. द रीज़न इज़ व्हेन आई लुक्ड एट माई मेंटोर इन फ्रांस, ही वॉज द साइंटिस्ट. अगर वो साइंटिस्ट होकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री का जो कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर है वो अपने यूनिवर्सिटी में बनवा सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि वो जो प्रोफेसर्स थे उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करने वाले 15 से 20 स्टूडेंट PhD स्टूडेंट थे. एक साथ डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करने वाले 15 से 20 PhD स्टूडेंट थे और 7 से 8 पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैं एक था. सो एट अ टाइम डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करने वाले लोग थे और वो अकेले जो है डिफरेंट आइडियाज़ पे उनको गाइड कर रहे थे. सो आई थॉट दैट भाई यही सब अच्छी चीज़ है कि भाई मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ. मेरे पास भी अगर एक ही आइडिया है तो मुझे अकेले जो है उसी पे काम करना पड़ेगा. अगर मैं ये फील्ड चूज़ करता हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं आई कैन गो एंड डू एंड वर्क ऑन द मल्टीपल आइडियाज़. सो आई चूज़ दिस प्रोफेशन. Thank you, sir, for sharing your insights. So, as we know, one of your main research areas is inflatable structures for space habitats. Could you please explain what it means in simple words for our audience to understand? Yeah. So, space habitat आप जानते हैं? हैबिटेट जहाँ पे लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं, इस जगह बोलते हैं हैबिटेट. तो स्पेस हैबिटेट मीन्स आपको स्पेस में रहना है. आजकल लोग स्पेस टूरिज़्म की बात कर रहे हैं. यस, आपने देखा भी होगा कि
कुछ लोग जो है स्पेस में जाके ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस लेकर आ गए वापस. यस. सो ऑन द सिमिलर लाइन्स, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस और द अदर प्लैनेट्स, यस, सो यू शुड हैव समथिंग टू स्टे इनसाइड देयर. यस, द स्पेस स्टेशन है. सो इट इज़ नॉट कि भाई यू मेक इट ऑन द अर्थ एंड देन you take it entire thing in the space. Yes, तो इतना बड़ा तो आप एयरक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल बना भी नहीं सकते उतनी कैपेसिटी का. सो व्हाट यू डू इज यू मेक द स्ट्रक्चर, ओके, विच विल बी लाइक अ फिल्म. आप बलून जानते हैं? बलून फुलाने से पहले कैसा होता है? एक छोटा सा स्ट्रिप होता है, इतना इतना छोटा सा स्ट्रिप होता है. जब उसके आप इन्फ्लेट करते हैं तो क्या होता है? सो इट टेक शेप. तो कभी होता है कि वो एकदम लंबा सा सिलेंडर बन जाता है. यस. कभी हार्ट शेप बन जाता है, कभी स्पीयर बन जाता है. यस. सो ये चीज़ें जो है, सो दीज आर कॉल्ड इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स. तो आप उनको फुलाने के बाद जो है दे टेक द शेप. ठीक है. तो यही चीज़ जो है इज़ द कंसेप्ट दैट इज़ यूज्ड इन द इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर. सो यू हैव द फिल्म ऑफ मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, okay, so which will resist the atmosphere in the space, okay, and then you take that thing, you take it in the deflated position. अगर आप बलून बोलेंगे deflated shape में तो इतना strip होगा. you take it in the space and inflate it. so inflate करने के बाद it will take the shape and it will become, if I want to make a house or if I want to make a cylindrical dome, okay, so these things can be made. So this is called as a inflatable structures, and this is for making your space station, and it could be the other things which they are used for the space explorations. Thank you, sir. This would have definitely helped our young listeners understand it. So we know your field of work is very high level and futuristic, so it must be challenging. So what do you say is the most difficult part of your work life? So जो भी चीज़ें हैं, okay, so you are talking about the space. The environment on the earth and the environment or the conditions that you are in the space are completely different. Yes, so on the earth you have air, you have some temperature conditions, yes, pressure conditions, humidity conditions, yes, but when you go in the space they are completely different. That's the one thing. So you have to take care of these conditions, you have to simulate these conditions on earth. ये चीज़ें जो है जो स्पेस में है वो चीज़ें जो है आपको लैबोरेटरी में यहाँ पे जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्रिएट करनी है. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. अदर थिंग इज दैट एज मनन आस्क्ड इन द बिगिनिंग, ओके, द लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. हर एक अटेम्प्ट में आपको सक्सेस नहीं मिल सकता. तो ये चीज़ ऐसे है कि कई बार जो है आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर ही नहीं पाते. वो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इट विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट. So there are multiple failures before we make some useful thing. Thank you, sir. And sir, as you previously told about inflatable structures for space habitats, do you think India might one day build real space habitats like the ones we in science fictions and novels? Yes. So you are in class maybe 10, 11, 12. So maybe another decade, and whatever you see in science or fiction movies, especially the Hollywood movies, आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना कि स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, एक जगह पे रुका है, यस, एंड रोबोट्स आ रहे हैं, वॉर खेल रहे हैं. ठीक है. सो दैट डे इज़ नॉट फार. ओके. यस, इंडिया इज़ प्लानिंग फॉर स्पेस हैबिटेट एंड गगनयान इज़ one of the step towards that. So certainly in another 10 years or so, India is planning to have its own space station. So certainly will have space habitat.
So your views on the topic were really insightful. And now as we move forward, we would like to conclude this session because we really got to know much more from you. So thank you so much, sir. Your valuable messages were truly wraps up our session today. We are deeply grateful to you, sir, for sharing your journey, your wisdom, and your insights. More importantly, thank you for inspiring us with the life lessons that go beyond textbooks. To our listeners, may we take these words as guidance, stay motivated, nurture compassion, and keep striving to shape not only successful careers but also meaningful lives. Thank you, sir. Thank you very much. That was truly insightful, sir. Your journey has filled us